आ गए हम फिर से एक किस्सा नया सुनाने, गर्मा गर्म जो मामले हैं उसको वाजिब बनाने, ए जी उसको वाजिब बनाने। हाय बडीज, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? फाइन। आप लोग सोच रहे होंगे सर आज इतना खुश क्यों है? तो खुश तो मैं वैसे भी रोज ही रहता हूँ भाई, कोई आज का दिन नहीं है कि मैं खुश हूँ, लेकिन बहुत जो टफ चैप्टर्स थे दैट आई क्लियर एंड दैट्स व्हाई आई एम मोर हैप्पी। एंड सेकंड थिंग, after completing such a little hard chapters, now let's be relaxed today, and this is the part where we are going to solve the new topic and new chapter, and that is the probability. Okay, oh, I have not written the topic, so your chapter is probability. मैं खुशी खुशी में चैप्टर का नाम लिखने भूल गया भाई। ओके, सो दिस इज योर probability part 1. Okay, so what is exact sense of probability? Last year in 9th standard so many sums were done, and in 10th standard 3 marks is related to this big sum and 2 marks for MCQ type question. Total 5 marks weightage is there. So if you want to score good percentage, good marks, then this chapter is again one milestone chapter in your 10th standard. Is it clear? So first of all, let's try to understand the meaning of probability. Okay, in pure Hindi, शुद्ध हिंदी अगर मैं बोलूं तो किसी भी घटना के घटने के शक्यता को, किसी भी घटना के घटने की शक्यता को हम लोग प्रोबेबिलिटी, संभावना बोलते हैं। आज का माहौल देखो, एटमॉस्फेयर देखो, और अगर आपसे कोई ये पूछे कि क्या आज बरसात पड़ेगी, और आप सिचुएशन देख के बोलते हो 50-50, यानी कि पड़ेगी भी और नहीं भी पड़ेगी, और आप मना कर देते हो नो नहीं पड़ेगी, या आप बोल देते हो यस पड़ेगी, तो 3 चीजें होंगी, या तो वो काम होगा, या वो नहीं होगा, या होने और ना होने के बीच में होगा। Okay, if the probability of any event is impossible, means it is not going to happen, then its probability is 0. Suppose I say that students in standard 10th got 101 marks out of 100 in board exam. Do you think it is possible? No, it is not possible. So this event is impossible event. So the probability of impossible event is 0. Now another possibility is that student can obtain 0 to 100 marks. So their probability is 1. Is it clear? So probability is between 0 to 1. See, the probability is between 0 to 1. It is greater than 0 and lesser than 1. And that's why whenever you solve the sums of probability, always you get the answer in decimal. First thing is that. Second thing, whenever you get in decimal, it is always 0 point something something something. Means it is always between 0 to 1. Okay. Now I say that 2 students got 90 marks out of 100. 2 स्टूडेंट को 90 मार्क्स मिले। सपोज द स्ट्रेंथ ऑफ योर क्लास इज 50. ओके, दैट इज द टोटल आउटकम, एंड आउट ऑफ 50 हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैज गॉट 90 of marks? 2 marks. So what is the probability that student get more than 90? So when you divide this 2 by 50, 0 लिया, पॉइंट लिया, 0 लिया, 21, नहीं बात बनी, एक और 0 लिया, एक और 0 लिया, 54 जा
200 means that probability is 0.04. Okay, here whatever events has taken place and here whatever total outcome, तो total outcome 50 student, it is in denominator, जितना event मिला है that is in numerator. That's why probability of event equal to number of outcome favorable to event divided by number of all possible outcomes of the experiment. Is it clear? ठीक है, अब इसको हम लोग अलग अलग एस्पेक्ट्स में यहाँ से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. दिस इज द फर्स्ट स्टेप वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड सेकंड you have to understand how to find the sums. Okay, how to solve the sums and how to understand the sums. Second, अब यहाँ पे यार हम लोग इसको अगर हम लोग देखें तो इसका जो आंसर आया 0.4 आया, बराबर. तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू 0.04. तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी जिनको ये नंबर नहीं आए, सो दैट इज पी ए एंड दैट इज डैश. सो पी ए डैश क्या होगा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा इसका, पी ए डैश इक्वल टू 1 माइनस पी ए, यानी 1 में से आपको क्या माइनस करना है, 0.04. ओके, अब आप इसमें से इसको कैसे माइनस करोगे, 1.000 एंड 0.04. डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए. दिस मच यू हैव टू लर्न. यू हैव कैरीड 1 फ्रॉम दिस साइड, इट बिकम 10 एंड इट बिकम 0. अगेन यू कैरीड हियर, इट बिकम 10, इट बिकम 9. दिस इज 6 एंड दिस इज 9. यानी जिन स्टूडेंट लोगों को 90 के ऊपर मार्क्स नहीं है उनकी प्रोबेबिलिटी 0.96 थी, और जिनको जो है 90 के अप मार्क्स है उनकी प्रोबेबिलिटी 0.04 हुई. लेट्स डू वन मोर फेनोमेना. नाउ सी 0.04 and 0.96. if you add 6 plus 4 10 0, carry on 1, 9 plus 1 10 0, carry on 1. यानी कि किसी भी प्रोबेबिलिटी के जितने भी इवेंट्स होंगे, इफ यू विल ऐड इट, देयर वैल्यू इज ऑलवेज 1. इट इज नॉट मोर देन 1. सो द प्रोबेबिलिटी हैज अकर्ड बिटवीन 0 to 1. दैट्स फाइनल. ओके, इतना आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. सो 3 थिंग्स आई एक्सप्लेन यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, possible event and impossible event, that I explained you. Possible event is always between 0 to 1. Impossible event, its probability is 0. Okay, and the probability of possible event is 1, and whatever the probability is there, it is always between 0 to 1. How to find the formula and what is the complementary of the probability. Okay, and it is always 1, means you can say like this way, PA plus P complement equal to 1. So again the meaning of this is the same. Is it clear? यानी कि किसी भी घटना और उसका कॉम्प्लीमेंट्री दोनों की वैल्यू 1 होती है. ये कुछ बातें आपको रिलेटेड टू दिस चैप्टर अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी. फर्स्ट थिंग इज दैट. सेकेंड थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन दिस चैप्टर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सम्स आर गिवन देयर and each and every sum is totally different with another one. Is it clear? So first of all, whenever you solve the sum, first you think about the total outcome, means denominator में क्या आएगा, you have to think about that, and then you think about the total favorable outcome कि वो क्या हो सकते हैं. अब एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि सम आपको एक पैटर्न के नहीं मिलेंगे. यहाँ पे यू विल गेट द सम ऑफ डिफरेंट पैटर्न, अलग अलग पैटर्न के सम्स यू विल गेट हियर.
Okay, result are same but patterns are different children. Okay, अब मैंने ऐसा बोला कि भाई एक फ्लावर पॉट में 2 रेड 3 white and 7 yellow roses हैं. Okay, so I asked what is the probability that the red roses. So total outcome you have to count first of all. 7 plus 3 10 and plus 2 12. Okay, so total outcome is 12 that you write in denominator. Now what is my question? मेरा question ये था red rose की probability कितनी? How many red roses are there? There are 2 red roses. Okay, ठीक है. Now you divide it. 2 ones are 2 6 are. Now this 1 you divide by 6. The whatever answer you will get, that is the probability of red rose. Suppose I say the probability of black rose. Is any black rose is there? No. So what is the probability of black rose? Of course 0. Yeah. So it is 0 upon 12 because there is no black rose. Is it clear? So this type of sums may be asked. अब डाइज होती है. अब उसमें आप लोगों को ऐसा पूछ लेगा कि भाई वन बैलेंस डाई इज देयर एंड व्हेन यू शफल. ओके, सो व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर. अब वापस से पहले चैप्टर में चले गए. हमने यहाँ पे प्राइम नंबर सीखा था. अब जिसने वो नई वीडियो देखे होंगे उसको यहाँ पे तकलीफ पड़ेगी. इज इट क्लियर? सो पहले तो यही नक्की करना है कि इसके टोटल आउटकम कितने हैं. तो आप लोगों को मालूम है व्हेन यू shuffle the dice, there are 1 2 3 4 5 6. इससे ज्यादा तो नहीं होता ना भाई. होते तो बताना. बराबर है, 6 ही होते ना. बराबर है. अब व्हाट आर द प्राइम नंबर्स? 2 3 5. ये दोनों कंपोजिट है. दिस इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, न्यूट्रल है. ओके, तो टोटल आउटकम इज 6. ओके, ऑफ एक्सपेरिमेंट. एंड फेवरेबल इवेंट कितने हुए हैं इसके? 3. तो 1/2 यानी 0.5. 0.5 मतलब 50%. देख लो 1 2 3 4 5 6. 6 का आधा कितना? 1 2 3. दैट इज 0.5. अंडरस्टूड और नॉट? तो अब आपको ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर नॉलेज लेनी होगी. Now certain sums I am going to solve with you. See it properly and then only you will be clear about this chapter. Whatever the base of this chapter is there, I explained you in deep. Now let's move toward the sums. Sums की शुरुआत करते हैं. Okay. Now see children, your complete the following statement. 15.1 first sum. क्या बोल रहा है वो? The probability of an event is E. The probability of the event not E. अगर E का +1 है, बराबर है, तो नॉट इवेंट का क्या होगा? मतलब प्लस है, बराबर है. तो दूसरे का क्या होगा? तो डेफिनेटली जो है अगर एक अगर 0 है तो दूसरा क्या होगा? +1. यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1. ओके, तो फर्स्ट वन इज द आंसर नंबर 1. सेकंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन डैश सच एन इवेंट इज कॉल्ड. ओके, अब सेकंड वन देखो. तो अगर कोई प्रोबेबिलिटी का इवेंट नहीं होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0. और जिसकी 0 होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट. तो पहले में ये आएगा, दूसरे में ये आएगा. ओके, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड. ओके, थर्ड देखो जरा. The probability of an event that is a certain to happen
बराबर है। किसी भी घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी बाय नेचुरल क्या होगी, द प्रोबेबिलिटी विल बी 1, यानी थर्ड में क्या आएगा 1। ओके, फिर क्या है उसके बाद में, और आप उसको ये भी बोल सकते हो सर्टेन एंड श्योर इवेंट, वो भी आप लिख सकते हो इसके अंदर, सर्टेन एंड श्योर इवेंट, ये भी हो सकती है, बराबर, ये भी इसका आंसर हो सकता है। फोर्थ में देखो, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट बाय नेचुरल, ये तो आपको मालूम ही है कि सभी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, दैट इज द 1। तो फोर्थ में क्या आ जाएगा, फोर्थ में 1। एंड देन नेक्स्ट इज योर फिफ्थ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या होगा, बराबर, ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 1। ये आपका जो है यहाँ पे कुछ कंप्लीट हुआ। सेकेंड वन में कुछ इतना दम नहीं है, बराबर है। यहाँ पे जो है आप लोगों को थियोरेटिकल टाइप में क्वेश्चंस पूछे हुए ऐसे एग्जाम में पूछता नहीं है, इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं खपाते। लेकिन फोर्थ वन में आओ, ये जो है थोड़ा मज़ेदार है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। सी द फोर्थ वन, यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, इसमें से कौन सा इवेंट प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। देखो 4 बातें दी हैं, पहला है 2/3, दूसरा है -1.5, तीसरा है 15% और चौथा है 0.7। अगर आप ऐसे भी देख लो ना, थोड़ा अंदाज लगा लो, तो इसको ही देख के समझ में आता है भैया ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, बाकी तीनों की तीनों प्रोबेबिलिटी है। क्यों? बिकॉज व्हेन यू 2 डिवाइडेड बाय 3 6 0.6 हो गया, प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज लेस देन 0 एंड मोर देन 1, सॉरी लेस देन 1 एंड मोर देन 0। 15%, 15/100, 0.15, ये भी है, लेकिन यहाँ पर ये भी 0.7 है, तो कौन सा नहीं है, और नेगेटिव है वापस से, तो प्रोबेबिलिटी तो 0 और 1 के बीच में होती है, ये तो 0 के उस साइड में, माइनस में है। दैट्स व्हाई दिस इवेंट इज नॉट द प्रोबेबिलिटी। इज इट क्लियर? दिस वन यू कैन डू योर ओन, यू कैन डू इट। नाउ सी द फिफ्थ वन। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, इफ PE इक्वल टू 0.5 then what will be the probability is not P dash E। ओके, तो अब जरा यहाँ पे इसको ध्यान से देखो। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। नाउ सी हियर, व्हाट इज द क्वेश्चन, इफ PE is 0.5 तो प्रोबेबिलिटी इज नॉट E, इवेंट नहीं है, यानी उसका कॉम्प्लीमेंट है। सो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू PE plus P dash E, इवन यू कैन राइट दिस वे और दिस वे, दोनों में से कोई भी, इक्वल टू 1 होता है। So P equal to 1 minus P, probability of event. So 1 minus 0.5, you subtract, you will get 0.95. How? That I am showing you here. 1.000 and 0.05. Same, इधर से कैरी किया, इधर ये 10 हो गया, ये 0 हो गया, इधर से कैरी किया, ये 10 हो गया, ये 9 होगा, 10 में से 5 प्लस करेंगे 5, इधर ये 9, ये पॉइंट, ये 0 एंड दिस इज 0.5, यानी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं है दैट इज 0.95। इज इट क्लियर? ठीक है। अब सिक्स्थ वन, वेरी इजी, यहाँ पे हम लोग आज अपना पार्ट कंप्लीट करेंगे, फिर अगले पार्ट में आगे जाएंगे। अब बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडी ओनली, लिसन केयरफुली। एक बैग में ओनली एंड ओनली लेमन फ्लेवर की कैंडी है। मालिनी टेक आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बैग में से उसने एक कैंडी बिना देखे निकाली। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट द ऑरेंज कलर फ्लेवर कैंडी। कैंडी कौन सी है? लेमन फ्लेवर की। ऑरेंज मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑरेंज फ्लेवर कैंडी? द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी इज 0।
And second, the lemon flavor candy. There are lemon flavor candy. So if she will put out, then definitely she will get lemon flavor. So the probability of lemon flavor is 1. जो नहीं है उसकी probability 0, जो available है उसकी probability 1. So this one you have to do. 6th आपको करना है from 7th onward. Okay, I will continue in next lecture. Is it clear? Bye. See you all of you.